ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಆತ್ಮೀಯರು ಆದಂತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದಂತ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅರಕಲೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮುಖಂಡರು ಆದಂತ ಯೋಗ ರಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮೈಸೂರು ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳು ಆತ್ಮೀಯರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದಂತಹ ಮೈವಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಹಾಸನ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಂತ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು, ರಂಗನಾಥ್ ಅವರು, ಅರಸೀಕೆರೆ ನಗರ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅವರು ಮತ್ತೆ ನಗರ ಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯರಿಗೂ ಸಹ ನಾನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಡೀ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ಸಹ ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂತಹ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ನನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣಕ್ಕೆ ಜೈ ಹಿಂದ್ ಜೈ ಕನ್ನಡ, ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜಲೋ ಬಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ, ಜೈ ಹಿಂದ್. ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಹಾಸನಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಮಾನ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜೆಪಿ ನಡ್ಡಾಜಿರವರಿಗೆ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಮ್ ಗೌಡರು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಈ ಮೂಲಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. बोलो भारत माता के, बोलो भारत माता के. ಬಿಜೆಪಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಘೋಷಣೆ ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ರಪ್ಪ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹಾಗೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹಾಸನದ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಎರಡೂ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಸ್ತುವಾರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಜೀರವರಿಗೂ ಸಹ ಹಾಸನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರು ಹಾಗೂ ಮಂಡಲದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪರವಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದ ಒಂದು ಗೌರವ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಿಗೆ. ಈಗ ಸಭೆಯನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಜ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನಾಯಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಜೀರವರು ತಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಬೂತ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಮಾವೇಶದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಭವ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ಮುಂದಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವಿಮೆಯನ್ನ ಕೊಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಟ್ಟಿರುವ ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾರ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿರುವ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಎದ್ದು ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಾಸನದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಕಿ, ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಕಿ, ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಕಿ. ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾಜಿ ಅವರೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಭಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಅರುಣ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೇ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಶಾಸಕರು,
ಯುವ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಿ.ಟಿ. ರವಿಯವರೇ, ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಿರಿಯರಾದ ಗೋಪಾಲಯ್ಯ ಅವರೇ, ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಸನ ನಗರವನ್ನ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಹರಿಕಾರರಾಗಿ ಸಾವಿರ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ತಂದಿರುವಂತಹ ಶಾಸಕ ಮಿತ್ರ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಕಳೆದ 3 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುರೇಶ್ ಗೌಡ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರುಗಳೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಯಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ಬಂಧುಗಳೇ, ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕೇಸರಿಯ ಪತಾಕೆಯನ್ನು ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ದೇವರುಗಳಿಗೂ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾಧ್ಯಮದ ಮಿತ್ರರೇ, ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ, ಹಾಸನಾಂಬೆಯ ಪುಣ್ಯ ಪಾವನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಹಾಸನ. ಆ ತಾಯಿ ಹಾಸನಾಂಬೆಗೆ ಮತ್ತು ಬೇಲೂರಿನ ಚೆನ್ನಕೇಶವನ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಾಮಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ವಿಜಯಿ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಯಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಡೀ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹಸಿರು ಮಾಯ ಆಗಿದೆ, ಕೇಸರಿಮಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಬಂದಿದೆ, ಕೇಸರಿ ಪತಾಕೆಗಳ ಹಾರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಇದರ ಸಂಕಲ್ಪವೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ಬಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಈ ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾಗಿ ಆಗಿದೆ. ವಾತಾವರಣ ಇಡೀ ಕೇಸರಿಮಯ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಬೇಲೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಹಾಸನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆವು. ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನರ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಕಂಡಾಗ ವಿಶ್ವಾಸ ಬಂದಿದೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರಿಸುತ್ತೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಪತಾಕೆ ಹಾರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ 4 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದೆವು. ಈ ಬಾರಿ ಹಾಸನದ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಗೆಲ್ಲುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವಾರವೇ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿ ಅದನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪರಿವಾರವೇ ಪಾರ್ಟಿ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮುಕ್ತ ಆಗುತ್ತೆ, ಪಾರ್ಟಿಯೇ ಪರಿವಾರ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಕಲ್ಪ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೂತನ್ನ ಗೆದ್ದು ದೇಶವನ್ನ ಗೆಲ್ಲತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಮತಗಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮತಗಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಭೂತಪೂರ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೂತ್ ವಿಜಯ ಸಂಕಲ್ಪ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಾಳಿಗೆ ಹಾಸನದ ಜನ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಂತ ಆಡಳಿತ ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆದರ್ಶದ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಜನ ಒಪ್ಪಿದೆ. ಜಗತ್ತು ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಕಡೆಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತ ಬೇಕು. ಬಂಧುಗಳ, ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ 2 ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನ. ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ದೇಶವನ್ನ ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಬೇಕನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಮುಖಾಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆಯ ಒಂದು ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ, ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಸನದಲ್ಲೇ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದವರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಹಾಸನದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾದವರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾರಣೀಭೂತರಾದರು. ಈ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ನಿಲ್ಲುವುದಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಶಾಸಕ ಆಗಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ವಾದಗಳು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿತ್ತು. ಹಾಸನದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮುಂದುವರೆದಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಕಾರಣ, ನಿತಿನ್ ಗಡ್ಕರಿ ಕಾರಣ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರೀತಂ ಗೌಡ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಸನ ಇವತ್ತು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಆಡಳಿತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಂಧುಗಳೇ, ಇವತ್ತು ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಯೋಜನೆ ಮುಖಾಂತರ ರೈತರ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರು? ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಮುಖಾಂತರ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು.
ನಾನು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರನ್ನು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈತ ವಿದ್ಯಾನಿಧಿಯ ಮುಖಾಂತರ 11 ಲಕ್ಷ ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಮೊದಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿಯವರು. ಬಂಧುಗಳೇ, ರೈತರ ಮಗ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೇಕಾರರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 500 ರೂಪಾಯಿ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೇಳಿದೆ, ಇವತ್ತು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಧನೆಗಳು ತಲುಪಿದ್ದಾವೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಇವತ್ತು ಮನೆ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮನೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತಿಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಾಸನವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗೆಲುವಾಗುವ ಹಾಗೆ ನೀವು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ, ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಜಗತ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡ್ಡಾ ಅವರು ನಮಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಧ್ವಜ ಹಾರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. हसन के इस बूथ सम्मेलन में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के जुझारू अध्यक्ष और लोकसभा में मेरे साथी श्री नलिन कटील जी, संसद में मेरे साथी और राष्ट्रीय महामंत्री श्री अरुण सिंह जी, हमारे वरिष्ठ साथी और पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री महामंत्री श्री सीटी रवि जी, श्री गोपाल अय्या जी जो कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, प्रीतम गौड़ा जी जो यहाँ के विधायक हैं, श्री HK सुरेश जी जिला प्रेसिडेंट और विश्वनाथ जी हमारे XMLA, सम्मानित मंच और इतनी बड़ी संख्या में हसन के सभी बूथों से आए हुए हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधु, आज मुझे चेन्नई केशव मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ बेलूर में, और आज मैं जब यहां आया हूं तो हसन अम्बा देवी जी को नमन करता हूं और उनसे आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। होयसाला डायनेस्टी की जब अगर बात करें तो चाहे वो आर्किटेक्चर हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो संस्कृति और कल्चर हो, होयसाला डायनेस्टी का एक अपना योगदान रहा है और लगभग 1900 मॉन्यूमेंट्स उनके द्वारा बनाए गए थे। ऐसे विरासत वाले स्थान पर मुझे आने का मौका मिला है। मैं अपनी ओर से ऐसी पवित्र भूमि को नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर के अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, अभी अभी नलिन कटील जी पूरे जोश में आपको मोदी जी के द्वारा किए गए कार्यों के बारे में चर्चा कर रहे थे। जितना मैं कन्नड़ समझ पाया, वह चर्चा कर रहे थे कि किस तरीके से मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में किस तरीके से देश के आवाम को मोदी जी ने नेतृत्व दिया है, उसकी उन्होंने चर्चा की है। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो भी यहां बैठे हैं, सभी बहुत भाग्यशाली हैं। वी ऑल भारतीय जनता पार्टी वर्कर्स आर वेरी वेरी लकी। When I say so,
जब मैं ऐसा कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भाग्यशाली हैं, वो इसलिए कहता हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ये गौरव महसूस करते हैं और ये गर्व से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश और कर्नाटक दोनों तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और समाज के हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। और फिर ये सिर्फ कहने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं। दिस इज नॉट ओनली टू कीप यू सेटिस्फाइड, दिस इज नॉट ओनली टू मेक यू हैप्पी। भाई जरा एको कर रहा है। दिस इज नॉट टू मेक यू हैप्पी, but at the same time this is a reality, ये सच्चाई है। आप देखिए, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, आज अमेरिका की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, आज यूरोप की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, आज चाइना की आर्थिक स्थिति कोरोना के बाद क्या है, ये दुनिया को नहीं मालूम है। आज ऑस्ट्रेलिया की स्थिति क्या है, लेकिन हम ये गौरव से कह सकते हैं कि कोरोना की लड़ाई के बाद और यूक्रेन के सप्लाई चेन की समस्या के बावजूद मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था मजबूती से आगे बढ़ रही है और एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में आगे बढ़ी है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे दूसरे देश कोरोना के समय में सही फैसले नहीं ले पाए। अमेरिका कुड नॉट डिसाइड वेदर इट वांट्स ह्यूमैनिटी और इकोनॉमी। द होल ऑफ यूरोप कुड नॉट डिसाइड वेदर लॉकडाउन लगाना है कि नहीं लगाना है। लेकिन मोदी जी ने समय रहते लॉकडाउन लगाया, जान को बचाया और जान को बचा करके जहान को भी बचाया और जहान को आगे ले गए। इस बात को हमको याद रखना चाहिए और इसीलिए स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस टुडे आई वुड लाइक टू शेयर विथ यू। मैं आपके साथ ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि आपने नीचे लोगों को बताना है कि आज भारत कहां खड़ा है। आज भारत अगर मोबाइल इंडस्ट्री उठाएं तो 2014 में 92% ऑफ मोबाइल्स वर इंपोर्टेड इन इंडिया। 92% मोबाइल भारत में बाहर से आते थे। आज मैं कह सकता हूं कि 97% of mobiles are being manufactured in India and India is number 2 in mobile manufacturing। और आपसे मैं निवेदन करूंगा, नया एप्पल खरीदना और उस एप्पल में देख लेना लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। इवन एप्पल इज नाउ बीइंग मेड इन इंडिया। दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड। ये देश की तरक्की हुई है। इफ आई टॉक अबाउट स्टील, इस्पात, चौथे नंबर पर भारत था, आज दूसरे नंबर पर भारत है। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करूं, आप सब लोग सुनते थे कि जापान की गाड़ियां होती हैं, डैटसन होता है, टोयोटा होता है, जापान की गाड़ियां होती हैं। आज मैं गौरव के साथ आपको बताना चाहता हूं, इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इंडिया इज नंबर 3 and we have defeated Japan. Now only America and China is ahead of us. ये हमको ध्यान में रखना है। और मैं पत्रकार भाइयों से कहूंगा कि वो यह ध्यान में ले कि 2014 India was the 10th economy and Britishers ruled us for 200 years. And I would like to share with you that now India is 5th largest economy and we have overtaken Britain. ब्रिटेन को पछाड़ करके हम आगे निकल गए हैं। ये भारत खड़ा हुआ है। If I talk about pharmaceuticals,
अगर मैं फार्मास्यूटिकल की बात करूं, दवाइयों की बात करूं, तो सबसे सस्ती दवा और असरदार दवा आज भारत बना रहा है। 138% भारत के दवाई में वृद्धि हुई है और 200 देशों को भारत आज अपना दवाई पहुंचा रहा है। ये भारत का करिश्मा है। अगर मैं बात करूं केमिकल्स की, तो 135 से ज्यादा देशों को केमिकल्स भारत पहुंचा रहा है। और मैं यहां बैठे हुए लोगों को देख रहा हूं, आप लोग टेलीविजन भी देखते हैं। अभी भी जो बाइडेन जी अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह से मास्क उतरा नहीं है। आपने देखा है ना टेलीविजन पर। Whenever you see Joe Biden, the president of America, you always find him, whenever he speaks, he takes out his mask, otherwise मास्क पहन के रहते हैं। और यहां मैं देख रहा हूं किसी ने भी मास्क नहीं पहना है और बड़े नजदीक नजदीक बैठे हैं। ये भारत है। और ये क्यों हो पाया है? ये इसलिए हो पाया है कि अमेरिका का वैक्सीनेशन, नोट कर लेना पत्रकार भाइयों, अमेरिका का वैक्सीनेशन इज 76%, यूरोप का वैक्सीनेशन इज 67% एंड इंडिया का वैक्सीनेशन इज 100%। 130 करोड़ की जनता को 220 करोड़ का डबल डोज विद बूस्टर लग करके तैयार है। ये भारत है, इसको समझना चाहिए। मैं ये भी आपसे शेयर करना चाहता हूं, हमारे कई कांग्रेसी मित्रों को देश बदलता हुआ दिखता नहीं है। इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में 30 साल लग गए। आई एम ए फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैं बोल रहा हूं 30 साल लग गए इस देश में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को आने में। इस देश में स्मॉल पॉक्स की दवा को आने में 25 साल लग गए। इस देश में पल्स पोलियो को नेशनल प्रोग्राम बनने में 28 इयर्स लग गए। इस देश में जापानी बुखार, जापानीज इंसेफ्लाइटिस की दवाई को आने में 100 इयर्स लग गए। लेकिन 2020 की जनवरी में पहला केस कोरोना का आया और मोदी जी ने अप्रैल 20 को टास्क फोर्स बैठाया और भारत सरकार की तरफ से फाइनेंशियल आर्थिक मदद दी गई और साइंटिस्टों को प्रोत्साहित किया गया और 9 महीने के अंदर एक नहीं 2 वैक्सीन भारत ने बना करके दी। ये भी हमको याद रखना चाहिए। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि भारत ने 100 कंट्रीज को वैक्सीनेशन पहुंचाया है, जिसमें से 48 कंट्रीज को मुफ्त वैक्सीन पहुंचाया है। यानी भारत मोदी जी के नेतृत्व में, आप भाग्यशाली हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में भारत लेने वाला भारत नहीं है, देने वाला भारत बन गया। इस बात को भी हमको समझना होगा, ये भी हमको जानना होगा। आप बताइए कौन सा देश है जिसने तालिबान इन्वेजन पर अफगानिस्तान से अपने लोगों को लाने का काम किया? आपको वो तस्वीरें याद है ना, जब प्लेन के टायर के साथ लोग पकड़ करके रनवे पर दौड़ते हुए देखे हैं कि नहीं देखे? देखे थे कि नहीं देखे थे? देखे थे। अफगानिस्तान में तालिबान के इन्वेजन के बाद लोग दौड़ते हुए एरोक्राफ्ट के उसके चक्कों के साथ दौड़ते हुए दिखे। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में एक एक भारतीयों को सुरक्षित दिल्ली लाने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। यह भी हम आपको बताना चाहते हैं। आप बताइए, यूक्रेन में हमारे 22,500 बच्चे पढ़ रहे थे। आपके कर्नाटक से भी 600 पीपल वर देयर। आपके कर्नाटक से 600 स्टूडेंट्स वर देयर। कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है और कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपने देश के बच्चों को लाने के लिए प्रयास किया? डिड अमेरिका ट्राई? डिड ऑस्ट्रेलिया ट्राई? डिड यूरोप ट्राई? डिड पाकिस्तान ट्राई? डिड बांग्लादेश ट्राई? डिड श्रीलंका ट्राई? लेकिन मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री मोदी जी की शख्सियत, उन्होंने एक समय में पुतिन से बात की, एक समय में ज़ेलेंस्की से बात की, युद्ध को रुकवाया
और 22,500 बच्चे सुरक्षित भारत पहुंचाए, ये भी हम लोगों ने देखा है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये सारी बातें एक के बाद ये घटनाएं मैं आपको इसलिए बता रहा हूं। टेल द पीपल इन कर्नाटका दैट अंडर नरेंद्र मोदी जी द कंट्री इज गोइंग फास्ट, स्ट्रांग एंड स्टेडी। तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है और पूरी बुलंदी के साथ आगे बढ़ रहा है। इस बात को हमको समझना होगा। मित्रों, चाहे इकोनॉमी उठा करके देख लो, अभी कभी आपने सुना था कि भारत 470 एयरबस प्लेन ऑर्डर करेगा? 470 एयर इंडिया ने प्लेन को ऑर्डर किया है। और इस प्लेन के ऑर्डर के कारण जो बाइडेन कहते हैं कि दिस इज गोइंग टू चेंज देयर इकोनॉमी। ऋषि सुनक बोलते हैं कि हमारी इकोनॉमी को फर्क पड़ेगा। फ्रांस का मैक्रोन बोलते हैं कि हमारे को फर्क पड़ेगा। यानी भारत अब अपनी ही अर्थव्यवस्था को नहीं देख रहा है, दुनिया की अर्थव्यवस्था में भी हलचल रखने की ताकत रखता है। इस बात को भी हमको समझना होगा। मित्रों, अगर मैं कर्नाटक की बात करूं, मुझे खुशी है कि येडियुरप्पा जी ने कर्नाटक में भी कोई कसर नहीं छोड़ी विकास के लिए, और बोम्मई साहब ने उसको आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अभी अभी बजट आया, ये गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, महिला, युवा, सबकी चिंता की गई है। अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना दी और किसानों की चिंता की, अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री सम्मान निधि के तहत किसानों की चिंता की, अगर मोदी जी ने प्रधानमंत्री मानदेय योजना के तहत किसानों की चिंता की, तो हमारे बोम्मई साहब ने भी किसानों को राहत देने में कोई कसर नहीं छोड़ा और इस बार के बजट में पूरी ताकत उनको देने का प्रयास किया है, एक होलिस्टिक विकास की दृष्टि से। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो स्वच्छता अभियान, उज्ज्वला अभियान, उजाला अभियान, सौभाग्य योजना ने महिलाओं को ताकत दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना ने उनको ताकत दी। तो कोई भी योजनाओं को नीचे तक उतारने में बोम्मई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है, यह भी हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं युवाओं की बात करूं तो प्रधानमंत्री जी ने अगर स्टार्टअप योजना शुरू की, मुद्रा योजना शुरू की, तो बोम्मई साहब ने भी युवाओं को, चाहे वो टैबलेट देने की बात हो, चाहे वो मोबाइल स्मार्टफोन देने की बात हो, चाहे स्कॉलरशिप देने की बात हो, उनके भी अरमानों को उड़ान देने का काम बोम्मई साहब ने किया है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं को शिक्षा के लिए सुविधा देना, स्कॉलरशिप देना, इसमें भी बोम्मई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और अगर मैं दलितों की बात करूं तो दलितों का रिजर्वेशन बढ़ाने में बोम्मई साहब ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर मैं ट्राइबल की बात करूं तो ट्राइबल का भी बढ़ाने में, रिजर्वेशन बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर दृष्टि से प्रयास किया गया है कि हम उसको आगे बढ़ाएं। और इसलिए इस बजट की अगर मैं बात करूं, क्या महिला, क्या युवा, क्या किसान, क्या मजदूर, क्या हमारे दलित भाई, क्या हमारे आदिवासी भाई, सबकी चिंता की गई है। तो इस बजट के अंतर्गत चिंता की गई है। मैं यहां यह भी आपको बताना चाहता हूं कि गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित की तो बात हुई है, लेकिन साथ ही साथ कर्नाटक को विकास के दृष्टि से आगे ले जाने में बोम्मई साहब ने और येडियुरप्पा जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में अभी जो हमारे यहां इन्वेस्टमेंट समिट हुआ था, आपको जानकर खुशी होगी कि 9 लाख करोड़ रुपए का कर्नाटक को इन्वेस्टमेंट मिला है। और मैं इसके साथ साथ बोलना चाहता हूं कि कर्नाटक शुड फील हैप्पी। कर्नाटक को खुश होना चाहिए कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में कर्नाटक प्रदेशों में, देश में नंबर 1 पर खड़ा है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ है तो कर्नाटक के अंदर हुआ है। अभी अभी मैं यहां हेलीकॉप्टर से उतरा तो मैं देख रहा था कि हसन के एयरपोर्ट पर काम चल रहा है। 27 तारीख को शिमोगा का उद्घाटन हो जाएगा। अभी पिछले साल नवंबर दिसंबर में प्रधानमंत्री जी आए थे और केम्पेगौड़ा टर्मिनल 2 का, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का उद्घाटन किया। 5,000 करोड़ रुपीस वॉज स्पेंट।
उसी तरीके से केम्पेगौड़ा, नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की स्टैचू का भी अनावरण उस समय किया गया। उसी समय वंदे भारत ट्रेन भी शुरू की गई मैसूर टू चेन्नई। वह भी अपने आप में मॉडर्न इंडिया की तस्वीर है, कनेक्टिविटी की, संस्कार की दृष्टि से एक क्रांति है जिसको हमको समझना होगा। मित्रों, आज हसन में एयरपोर्ट बन रहा है। हमारी तमन्ना है कि हम हसन को भी हुबली की तरह, मैंगलोर की तरह, हमारी तमन्ना है कि हम इसको आगे बढ़ाएं और यह भी एक सेंटर होना चाहिए। मुझे खुशी है कि हसन इज डेवलपिंग एज ए टेक्सटाइल सेंटर एंड इट शुड डेवलप एज ए टेक्सटाइल सेंटर। लेकिन मित्रों, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, ये आपका एक आधा कंट्रीब्यूशन से काम नहीं चलेगा। हसन में 100% रिजल्ट चाहिए, 100% रिजल्ट। फुल 7 सीट्स, नो 1 सीट, ऑल 7 सीट्स। बोलो मिलेगा 7 सीट? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं, 7 सीट मिलेगा? 7 सीट मिलेगा? इधर से सुनना चाहता हूं, 7 सीट मिलेगा? मित्रों, आपको आजकल अनडिस्टर्ब पावर कट मिल रहा है। विदाउट पावर कट अनडिस्टर्ब पावर मिल रही है। इंडिया पावर कंजम्पशन में, पावर कंजम्पशन इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ डेवलपमेंट। इंडिया पावर कंजम्पशन में तीसरे नंबर पर खड़ा है दुनिया में, और रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया चौथे नंबर पर खड़ा है। और यही कर्नाटक सिद्धारमैया के जमाने में पावर कट, पावर कट, पावर कट। ये तो आपने अच्छा किया कि उनका ही पावर कट कर दिया। आगे भी कट रखोगे ना? कट रखोगे कि नहीं रखोगे? 24 घंटे बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अनहिंडर्ड बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर बिजली चाहिए तो भाजपा चाहिए, अगर बिजली नहीं चाहिए तो कांग्रेस को देखो। हमारी सरकार, मैं इसलिए बोलना चाहता हूं कि हम विकास के साथ जुड़े हुए लोग हैं। हसन की तस्वीर बदलना चाहते हैं। एयरपोर्ट आएगा, नेशनल हाईवेज आ रहे हैं। बोलो, नेशनल हाईवेज पर काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हर जगह देखो, कहीं ना कहीं नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे डेवलपमेंट की दृष्टि से चल रहा है। मित्रों, आपसे मेरा निवेदन है कि आप इस विकास की गति को आगे बढ़ाओ। और एक बात और मैं बता देना चाहता हूं, और वो मैं बड़े स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहता हूं कि आप बताइए, मुझे अभी आंकड़े याद नहीं है। मुझे आंकड़े इसलिए याद नहीं है क्योंकि मैं सिद्धारमैया जी के बारे में बताना चाहूंगा। लगभग 1600 समथिंग लोगों को, पीएफआई के कार्यकर्ताओं को जेल से छुड़ाने का काम किया था तो सिद्धारमैया जी ने किया था। मोर देन 1600 प्लस एंड some 200 plus cases were withdrawn. 200 cases were withdrawn. What does this mean? This means that we believe in unity. We believe in सबका साथ. We believe in सबका विकास. We believe in सबका प्रयास. और कांग्रेस पार्टी believes in division. जाति को जाति से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, धर्म को धर्म से लड़ाओ, जाति को जाति से लड़ाओ। इस तरीके का काम हमारे सिद्धारमैया जी ने लिया। और इसीलिए पीएफआई के कार्यकर्ता जो बताइए, कर्नाटक में पीएफआई के कार्यकर्ताओं ने दहशत फैलाया था कि नहीं फैलाया था? दहशत फैलाया था कि नहीं फैलाया था? फैलाया था कि नहीं फैलाया था? ऐसे लोगों को जेल से छुड़ाने का काम हमारे सिद्धारमैया जी ने किया। सिद्धारमैया जी also stands for corruption. How I say so? I say so because बोमई साहब और येडियुरप्पा साहब लोकायुक्त का इंस्टीट्यूशन लागू कराते हैं और सिद्धारमैया लोकायुक्त के इंस्टीट्यूशन को डिसमेंटल कर देते हैं, डिस्टर्ब कर देते हैं। बताओ ईमानदारी के साथ कौन खड़ा है? मेरा चार्ज है कांग्रेस पार्टी पर, मेरा चार्ज है सिद्धारमैया जी पर। आप बड़ी बड़ी बातें करते हो, आप भ्रष्टाचार के पोषक हो,
आप यू आर दी सेवियर ऑफ द करप्ट पीपल, यू बिलीव इन करप्शन एंड कमीशन, एंड भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी के साथ आपकी सेवा के लिए जुड़ी है। इसलिए आपके बीच में ज्यादा समय न लेता हुआ एक ही निवेदन करने आया हूं कि आप पूरी ताकत से हसन का 100/100 का 100% रिजल्ट दो। विकास में हम आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ेंगे, तीव्र गति से चलेंगे। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय कर्नाटक।